Yes, okay, thank you. Yes, so very good afternoon, everyone. I welcome you all to today's session. And first of all, on behalf of the entire BVP family, I would like to wish you all a very happy International Women's Day. To begin this celebration today, first of all, I would like to quote a very beautiful line said by Hillary Clinton. It goes as in, women are the largest untapped reservoir of talent and energy in this world. And friends, I'm sure you will definitely agree to that. The power, the patience, and the mind that a woman holds can never be matched. So, for today's session, we have a wonderful guest accompanying us for today's session. This is Miss Deepika Patil. So, before we begin on with the session, I would first of all like our principal, Dr. Rajendra Kumar Patil, sir, if you could please share a few words, sir. Am I audible? Yes, sir, you are. Good morning, everybody. Uh, all my dear colleagues and our guest today, Deepika Ji Pate, on this platform of Microsoft Teams. I welcome all the members here for this altogether a different program on account of this Women's Day. Just couple of minutes back, we had a program on women empowerment and some techniques were shared and taught to us by our guest then. No doubt, this music is a very important part of our life. And if we trace back this music, probably, Deepika ji, if I am wrong, please correct me. But the origin or the first written record of existence of music comes somewhere in Vedas. And since thousands of years, this is part of our life, part of our culture, and it has some eminent and outstanding benefits. It helps us in improving moods, reduce the stress, reduce the anxiety, improves memory, eases out pain. So there are innumerable benefits of uh, music in human life. Now, especially for the students, when I was going through Deepika ji through your details, I found that your MBA, and I really appreciate because combining professional education and pursuing passionately rather some art like music or maybe any other, that is very definitely a challenging job. We have certain examples in our art sector in Maharashtra, right from Dr. Sriram Lagu, Salil Kulkarni. By the way, you may be aware, Salil Kulkarni is alumni of Bharati Vidyapit. He is MBBS from our medical college. So, and there are a lot many people who have their professional degrees. Somewhere at some point they found more interest in the art, music, dramatics, movies and all that, and they are fully devoted to this. But while pursuing a professional education and passionately pursuing somewhere about in the art, that is really a challenging thing. Now, our in engineering college, the number of students who would be interested in some diversified interest areas, that number is also quite a good. And definitely we'll love to know from you that how both of these things can go hand in hand, and along with the professional excellence, how one can achieve the or scale some heights in the sector of art. Now, our computer engineering department on this occasion, they have arranged this program, and we are really very glad to have a guest like you to speak with the students and to with us faculty members also. And this will be a very nice and memorable program.
Madam, we would have loved to have you on our campus, but in the current scenario of this COVID-19, it is better to be away and be on some online platform. आणि जे मराठीमध्ये जे म्हणतात दुधाची तहान ताकावर भागवणे, तशा पद्धतीनं आपण हा प्रोग्राम हे करू. पण निश्चितच हा जी पूर्ण जगावरच आलेली एक जी वाईट वेळ आहे, त्यातून आपण बाहेर पडलो की त्याच्यानंतर तुम्हाला पुन्हा एकदा आमच्या कॅम्पसवर यायचं आहे आणि आमच्या विद्यार्थ्यांशी आणि आमच्या शिक्षक वृंदांशी संवाद साधायचा आहे. दॅट विल बी अ डे ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर अस. थँक यू फॉर बिईंग विथ अस. थँक यू व्हेरी मच. Thank you so much, sir, for those kind words. So, without wasting any further time, I won't come in between our guest and the student. I know we all are waiting for the guest to be heard. So, I would just like to quickly introduce our guest first of all. And since today's session is really going to be very interesting, it's kind of like an interview with our guest. Our very own Professor Sanket Pawar sir will be taking her interview, and all the other questions by the students can definitely be answered towards the end of the session. And it's going to be a musical session. It's going to be great. We all are going to have fun. So yes, just a formal introduction I would like to give about our guest of honor for the day. She has been a playback singer and performing artist with 10 plus years of music experience. She has been trained under playback singers, some of the great names like Padma Shri Pandit Suresh G. Wadkar, Vidhushi Archana Tai Kanhare, Pandit Mukund Anand Marathe, and Mrs. Padmaja Karade. Currently, she is working as a vocal music instructor at Sri Suresh Wadkar's Avivasan Music Academy. She has given playback to some of the great Marathi and Hindi singles, which include a song for popular labels like Ultra Music Corporation. She is also going to record an original song for a music app called Baja Music. She regularly performs music of all genres like classical, Natya Sangeet, film, and non film music in concerts as well. She has performed in many popular shows like Marathi Bana, Marathi Paul Padte, Mahalakshmi Saras, etc. She is also a Guinness Book World Record holder for being a part of world's largest cinematic band member. She also runs her private YouTube channel, which already has more than 50K plus views on her channel altogether. So, ma'am, I really welcome you first of all to come here and grace us with this occasion today. Now, I request our Professor Sanket Pawar sir to please begin with the session. And, ma'am, I welcome you once again. Thank you, Joseph. So first of all, Deepika ma'am, on the behalf of Bharati Vidyapeeth College of Engineering, Lavade, Department of Computer Engineering, very warm welcome to you for the today's session. We are so glad to have you as our special guest for the today's session. From the Department of Computer Engineering, we also very happy Women's Day to all of you and all the women present over here. ये जो सेशन होने वाला है बेसिकली वी टॉक इन हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी एज वेल, बिकॉज मेरा जो मानना है कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन ये जो लैंग्वेज है वो माइंड से कनेक्टेड होती है और वो उसी के थ्रू समझाई जाती है. ठीक है, तो इसके लिए ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव होने वाला है. तो सबसे पहले मैं दीपिका मैम जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सेशन की जो शुरुआत है वो आपके अच्छे से एक गाने से शुरुआत की जाए. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो बहुत से पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए. सो प्लीज़ मैम, कैन यू सिंग वन सॉन्ग फॉर अस? थैंक यू सो मच सर. सबसे पहले प्रिंसिपल सर, देन प्रोफेसर पाटकर सर, जोसेफ जी एंड संकेत पवार सर, सबको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू टू हैव मी फॉर हैविंग मी एज अ गेस्ट टुडे. And definitely after this COVID situation is over, I would like to visit your campus someday, hopefully soon in future. And happy Women's Day to all the women who are there listening to this session. और आज के सेशन की शुरुआत में एक सरस्वती माँ जिनकी हम सब आराधना करते हैं, तो एक मराठी सॉन्ग जो शारदा, सरस्वती माँ जिनको हम शारदा भी कहते हैं, तो जय शारदे वागीश्वरी, ये गाना मराठी सुनकर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं.
जय शारदे महादेश्वरी, जय शारदे भागीश्वरी, विधि कन्यके विद्याधरी, भागीश्वरी भागीश्वरी, जय शारदे भागीश्वरी, जय शारदे भागीश्वरी। जो वाह मैं वाह कांति तुझे जो परी कांति मुखरम्य शारद चंद्रमादये तुझा हास्यातुनी उदये तुझा हास्यातुनी चारी युगाची पौर्णिमा तुझी कृपेचे चांदणे तुझी कृपेचे चांदणे नितवर्षुदे अमुचा श्री नितवर्षुदे अमुचा श्री वागीश्वरी, जय शारदे वागीश्वरी, जय शारदे वागीश्वरी, विधि कन्यके विद्याधरी, वागीश्वरी वागीश्वरी, जय शारदे वागीश्वरी, जय शारदे वागीश्वरी। वा वा, काय सुंदर सुरुवात केली आपल्या या कार्यक्रमाची. खरंच खूप ऐकून छान वाटलं. मॅडम, आपला आवाज सगळ्यात पहिल्यांदा मी सांगू शकतो तुमचा आवाज खूपच छान आहे, खूपच सुंदर आहे आणि मातेचं गाणं ऐकून खूपच चांगलं प्रसन्न वातावरण झालेलं आहे. तर मॅडम, एक तुम्हाला पहिला प्रश्न असा विचारू इच्छितो की कला आणि गायन क्षेत्र यामध्ये तुम्हाला आवड कशी निर्माण झाली? म्हणजे तुमच्या घरापासून होतं की तुम्हाला तुम्ही फर्स्ट तुमच्या घरातनं सुरुवातच आहे तुमच्यापासून, का तुमच्या घरात आई वडिलांपासून ही तुमची आवड तुमच्याकडे आली? तर आणि ह्या क्षेत्रात यायचं किंवा ह्या क्षेत्रात ॲज अ करिअर म्हणून बघायचं तुम्ही कधी डिसाईड केलं? ऍक्च्युली माझ्या घरात आर्टिस्ट कोणी नाहीये. प्रोफेशनली संगीत किंवा म्युझिक असं कोणी फॉलो करत नाही. बट डेफिनेटली माझे आई वडील दोघांनाही खूप आवड आहे गाण्याची. म्हणजे ते कानसेन आहेत. तानसेन नाहीये, बट बोथ ऑफ देम आर कानसेन आणि त्यांना चांगलं गाणं ऐकायला खूप आवडतं. तर माझ्या लहानपणापासून आणि माझ्या आईला गाणं शिकायची खूप इच्छा होती. ती जेव्हा शाळा कॉलेजमध्ये होती तेव्हा. पण त्यावेळेचं वातावरण असं नव्हतं, की मुलींना कोणी गाणं शिकवायला पाठवेल आणि मुलींना प्रोफेशनली कोणी स्टेजवर जाऊ देईल. तर माझ्या आईनी शाळा कॉलेजेसमध्ये वगैरे सगळ्या कार्यक्रमात आई गाणी गायची. तिने परफॉर्मन्सेस दिलेले आहेत. पण तिला प्रोफेशनली असं शिकायला पाठवलं नाही तिच्या आई-वडिलांनी. तर त्यामुळे मग कुठेतरी ते तिच्या मनात होतं, की माझ्या मुलीने गाणं शिकलं पाहिजे आणि माझ्या आईचा पण आवाज छान आहे. ती अशी घरात गात असते, गुणगुणत असते. पण तिला शिकायची संधी नाही मिळाली. तर तिने मग लहानपणापासून खरं तर मला जे गाणं शिकायला पाठवलं ते माझ्या आईनी पाठवलं. म्हणजे when I was in 3rd standard, she enrolled me in a music class. I'm from a town called Chalisgaon, near Jalgaon. म्हणजे आणि त्या गावामध्ये म्युझिक क्लासेस जिथे चालायचे
तर तिथे आईने मला क्लासमध्ये ॲडमिशन घेतली मी 3रीत असताना. पण तेव्हा मला ते आवडत नव्हतं. ते शास्त्रीय संगीताचा क्लास होता. तर तेव्हा मी नाही म्हणायचे, की मला नाही आवडत आहे तिथे जायला. बट ती म्हणाली, की "थोडे दिवस जा, तुला आवडेल." आणि एक 4-6 महिन्यात खरंच मला ते आवडायला लागलं. सो फ्रॉम देअर ऑन दॅट टाईम ऑनवर्ड आय नेव्हर सेड नो. सुरुवातीला 3-4 महिने खूप मी क्लासला जायला नाही म्हणायचे, नाटकं करायचे. पण नंतर मलाच ते आवडायला लागलं आणि मग पुढे गाणं आवडीने पर्स्यू केलं एवढी सगळी वर्ष. आणि म्युझिक एक करियर म्हणून किंवा प्रोफेशनली त्यात पडायचं म्हणून असं मी खूप त्या बाबतीत कधी विचारच केला नव्हता. माझ्या एक बॅक ऑफ द माइंड ते ऑल्वेज चालू असायचं, की मला गाण्यात पण करियर करायचंय. म्हणजे मी लहानपणी बोलत असताना मी कायम म्हणायचे, की मी गायिका पण होणार आणि मी डॉक्टर, इंजिनिअर जे काय आपण नेहमी लहानपणापासून म्हणत असतो, तर ते पण होणार. पण मग जसं-जसं मोठं व्हायला लागलो, तसं कळालं, की थोडं अवघड आहे दोन्ही एकत्र करणं. म्हणजे आपण एक डिग्री घेऊन कुठलीतरी आणि गाण्यात काम करणं वेगळं आणि एक टॉपमोस्ट कॉर्पोरेट करियर किंवा एक टॉपमोस्ट प्रोफेशन डॉक्टर, इंजिनिअर सारखा घेऊन त्यात पण तेवढंच यशस्वी होणं आणि गाण्यात पण टॉपला जाणं. हे दोन्ही एकत्र करणं खूप अवघड आहे. तर मी त्यामुळे मग घरात सगळ्यांनी असं सांगितलं, की एक डिग्री घ्यायची चांगली. गाण्यात करियर करायचं असेल तरी गाणं जर उद्या चाललं नाही, ते एक मिडल क्लास फॅमिलीजमध्ये सगळ्यांचा तोच विचार हो, असतो, हो. की करेक्ट. चाललं नाही, पुढे आपल्याला त्याच्यावरून आपलं पोट भरलं नाही, तर आपल्याला एक डिग्री हातात असली पाहिजे. तर हा एक विचार नेहमीच घरात सगळे नातेवाईक, फ्रेंड सर्कल यामध्ये हा एक टॉपिक नेहमी असायचा. तर त्यामुळे मग कुठेतरी मी त्यावेळेला असा विचार केला, की नाही मला एक डिग्री पाहिजे. मी गाणं तर काय मी करूच शकते. असं म्हणून मग मी ती डिग्री घेतली, एम-बी-ए केलं. आणि एम-बी-ए केल्यानंतर मग मला वाटलं, की आता माझी डिग्री झाली. आता मी जॉब पण करू शकते आणि मी गाणं पण चालू ठेवू शकते. बिकॉज 12वी नंतर मी पुण्यात शिकायला गेले आणि त्यानंतर माझं गाणं जे होतं ते मागे पडलं एक 5-6 वर्ष माझं ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट होईपर्यंत. कारण तेव्हा मी हॉस्टेलला राहायचे. आम्हाला हॉस्टेलमधून कॉलेजचं टायमिंगच खूप होतं. कॉलेज झाल्यानंतर हॉस्टेलला संध्याकाळी लवकर परत जावं लागायचं. तर मला गाणं शिकायला, गाण्याच्या क्लासला जायलाच वेळ नसायचा. रियाजाला प्लस सगळ्या एक्झाम्स आणि हे त्यामुळे पोस्ट ग्रॅज्युएशन होईपर्यंत ऑलमोस्ट 6 ते 7 वर्ष माझा गाण्याशी बिलकुल टच नव्हता. मी गाणी ऐकत असायचे, आपली स्वतः गुणगुणत असायचे. पण प्रोफेशनली मला क्लास लावणे किंवा कुठेतरी कार्यक्रमांना गाणे हे करायला मला तेव्हा वेळ मिळाला नाही किंवा मी ते करू शकले नाही. तर त्यामुळे 7 वर्ष जवळ-जवळ गाणं माझं बंदच होतं करायला. आणि एम-बी-ए झाल्यानंतर मला वाटलं, की येस, आता मी जॉब करणार आणि मी गाणं साइड बाय साइड मी चालू ठेवणार किंवा दोन्ही मी इक्वली पर्स्यू करणार, फॉलो करणार. पण त्यानंतरही काहीतरी वेगळंच ते पुढे होतं फ्युचरमध्ये ते मला तेव्हा कळालं नाही. पण आफ्टर आय स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर कंप्लीटिंग एम-बी-ए तर 1 वर्ष मी जॉब केला. पण तो जॉब एवढा हेक्टिक होता, की मला तेव्हा म्हणजे सॅटर्डे संडेजला पण आम्हाला एक्स्ट्रा काम असायचं. सुट्टी असेल तरी वर्क फ्रॉम होम दिवसभर मेल पाठवायचे कंटिन्यू. सो इट वॉज अ काइंड ऑफ जॉब आय नेव्हर गॉट अ टाईम फॉर माय सिंगिंग. आणि मग एक वेळ अशी आली, की थोडा मी विचार केला, की नाही आय विल हॅव टू डिसाईड. असा एक पॉइंट आला, की मला नक्की काय करायचं. तर माझ्याकडे डिग्री आहेच, पण आणि मी डिग्री घेऊन ठेवली आहे. मला गाण्याला पण वेळ द्यायचा आहे. तर दोन्हीपैकी काय करायचं हे मला आता डिस्कनेक्ट झाले. हं? Uh, नाही आहेत ना. तर मला वाटलं, की जर मी गाण्यात नाही पुढे जाऊ शकले, तर मी आय विल कम बॅक टू माय जॉब. बट आय हॅव टू ट्राय अँड गो इंटू द प्रोफेशनल म्युझिक. तर त्यानंतर मग मी म्युझिकला फुल टाईम डिव्होट केलं स्वतःला. मग मी चांगले गुरु शोधायला सुरुवात केली आणि त्यानंतर मग मला सुरेशजींकडे जाण्याची संधी मिळाली. सुरेशजी वाडकरांशी माझी ओळख झाली. त्यांच्याकडे मी शिकायला सुरुवात केली. आय शिफ्टेड टू मुंबई. आणि मग त्यानंतर पुढे गाण्यातला सगळा प्रवास सुरू झाला. त्यानंतर आणि थँकफुली मला असं कधी वाटलं नाही, की मी परत एम-बी-ए मध्ये किंवा कॉर्पोरेट जॉबमध्ये स्विच करायला. खूपच समर्पक उत्तर दिलं मॅडम. मॅडम पुढचा प्रश्न माझा असा आहे, की तुमचा जो पहिले गुरु आहेत, ते कोण होते आणि त्यांचं पहिलं गाणं किंवा
जे काही तुम्हाला पहिलं गाणं आठवतं तर ते तुम्ही थोडं आमच्यासाठी गुणगुणलात तर फार बरं होईल. पहिल्या गुरु ऍक्च्युली मी चाळीसगाव मधून आहे. तर चाळीसगाव या माझ्या गावात जे म्युझिक क्लासेस मी म्हणलं माझ्या आईने शाळेत असताना मला जिथे क्लासला ऍडमिशन घेतली तर तिथल्या क्लासमधल्या ज्या मॅडम होत्या तो पद्मजा खराडे, तर त्या माझ्या पहिल्या गुरु होते. तर त्या खूप छान गातात, त्यांचा आवाज खूप छान आहे. पण त्यांच्या आवाजात कुठलं गाणं रेकॉर्ड झालेलं नाहीये, त्या प्लेबॅक सिंगर नाहीये. त्या गाणं शिकवतात आणि छोटे मोठे कार्यक्रम करतात. बरं. पण तर त्यांनी मला शिकवलेली बरीच गाणी आहेत त्यांनी मला शिकवलेली. एखादं त्यांच्या गाणं आवाज त्यांनी शिकवलेल्यापैकी एक दोन ओळी फक्त म्हणजे त्यांनी स्वतः चाल लावली होती या गाण्याला, पांडुरंगाचं एक गाणं. त्या दोनच ओळी मला आठवतायत. तर आषाढाचा मास दर्शनाची आस होती तुझे भास पांडुरंगा. आषाढाचा मास दर्शनाची आस होती तुझे भास पांडुरंगा. एवढ्या त्या दोन ओळी ते मी शाळेत असताना छान शिकवल्या छान होत्या. आता मला फारच छान. बाकी त्यांनी मला राग आणि शास्त्रीय संगीत बरंच शिकवलं. ओके मैडम, हर एक क्षेत्र में नाम कमाने के लिए कुछ अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है, जैसे आपके ये शिक्षक आपने नाम बताया आपका, तो सबसे पहले आपको पूछना चाहूँगा कि आपका पंडित सुरेश जी वाडकर के साथ सबसे पहले संबंध कहाँ पे आया और आप कैसे मतलब उनसे शिक्षा प्राप्त करने का मौका आपको कैसे मिला? जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर आई डिसाइडेड टू फॉलो म्यूजिक एज माय फुल टाइम करियर, तो उसके बाद मैंने एक अच्छे गुरु की तलाश करना शुरू किया कि बिकॉज मुझे ये पता था कि संगीत में गुरु के बिना आपका कुछ नहीं होता। संगीत मतलब एग्जैक्टली। दुनिया का कोई भी फील्ड ले लो, उसमें अच्छा गुरु होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे एक अच्छे गुरु की तलाश थी जो मुझे एक प्रोफेशनली म्यूजिक को फॉलो करने के लिए सही रास्ता दिखाए, जो मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करने के लिए मुझे इंस्पायर करे। तो मैंने एक्चुअली 4-5 जो फेमस सिंगर्स हैं उनके पास मैं गई थी। पुणे में जो पंडित संजीव अभ्यंकर जी हैं वो क्लासिकल सिंगर हैं। तो उनके सलील कुलकर्णी जो अभी प्रिंसिपल सर ने नाम लिया, उनकी अकेडमी, उनका लाइट म्यूजिक अकेडमी है पुणे में, वहाँ पर भी मैं कुछ मंथ के लिए सीखी हूँ, बट वहाँ पे सलील जी खुद नहीं सिखाते थे, वो कभी-कभार आते थे, वो 2 महीने पे 1 बार आते थे। उनके यहाँ पे मैंने लाइट म्यूजिक भी मैंने उनके यहाँ पे थोड़ा कुछ दिन सीखी हुई है। बट मुझे फुल टाइम गुरु जो रोज़ या एटलीस्ट वीक में 2-3 बार मैं जिनके पास जाके कुछ सीख सकूँ, अपना गाना सुन सकूँ, अपने गाने पे उनसे उनसे कुछ फीडबैक ले सकूँ, ऐसे कुछ गुरु ढूँढ रही थी मैं। तो तब किसी ने मुझे बताया कि सुरेश जी वाडकर जो है वो सिखाते हैं, उनका बहुत बड़ा गुरुकुल है मुंबई में। तो पिछले कुछ 1-2 एक्सपीरियंस से बेस्ड मैंने उनको पूछा कि क्या सही में सुरेश जी ही सिखाते हैं? क्योंकि बहुत सारी अकेडमीज़ में क्या है कि जिनके नाम पे जो मेन प्रोफेशनल सिंगर है, उनके नाम पे अकेडमी होती है, बट वो खुद नहीं सिखाते वहाँ पे, दूसरे टीचर्स। तो मैंने उनको पूछा कि क्या सच में सुरेश जी सिखाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं बट सुरेश जी भी खुद एक कुछ चुनिंदा 10-15 स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, वो ऑडिशन लेके सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो मैंने उनकी अकेडमी में से इंक्वायरी किया, मैंने नंबर वगैरह चेक की। तो उन्होंने बोला कि सुरेश जी से सीखना है तो आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। ओके। वो ऑडिशन का डेट उन्होंने जब बुलाया उस दिन मैं गई वहाँ पे, तो सुरेश जी के सामने फर्स्ट टाइम मैंने कुछ प्रिपेयर करके गई थी, गाया, थोड़ा नर्वस थी बट गाया जो प्रैक्टिस किया था। तो सुरेश जी ने सुना जो मैंने गाया और उन्होंने कहा कि मैं सिखाऊँगा तुम्हें, तुम कल से आ जाओ। और इस तरह से फिर उनके साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। वो रोज़ अपने कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को लेके रियाज़ के लिए बैठते हैं, रोज़ सुबह 2-3 घंटे। और फिर कुछ स्टूडेंट्स को भी गाने शुरू करते हैं। तो इस तरह से सुरेश जी के साथ मेरा म्यूज़िकल सफ़र जो था वो शुरू हुआ। मैडम, उनका कुछ गाना एक आपको याद आ रहा हो अभी? उनके तो बहुत सारे वैसे तो गाने बहुत सारे गाने हाँ, लेकिन एक जो आपको पसंद है उनका। अगेन पसंद भी बहुत सारे हैं, उनमें से एक सुना देती हूँ।
अब एक्चुअली एक मराठी सॉन्ग ही दिमाग में आ रहा था, बट अभी तक जो 2 गाने गाए मराठी गाए, तो एक हिंदी उनका गाना सुना देती हूँ। ओके ओके ओके, श्योर मैम। ऐ जिंदगी गले लगा ली, ऐ जिंदगी गले लगा ली, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना? ऐ जिंदगी गले लगा ली, ऐ जिंदगी गले लगा ली। क्या बात है मैम, क्या बात है। हमारे एक सर है, आत्रे सर, वो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे मैम। 1 सेकंड। मॅडम नमस्ते. सर्वप्रथम मी आपणा सर्वांना महिला दिनाच्या शुभेच्छा देतो. भारती विद्यापीठ हे आपलं 1964 साली आदरणीय साहेब पतंगराव कदम साहेबांनी स्थापना केली आणि सामान्य विद्यार्थी डोळ्यासमोर ठेवून, सामान्य लोक डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी शिक्षणाचा हा मेरू पर्वत त्यांनी उभा केला आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की अनेक विद्यार्थिनींच्या दरवर्षी साधारणपणे 2.5 कोटींच्या फीज साहेब माफ करत होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी जव्हारमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी मोफत त्यांनी हॉस्टेल सुरू केलं. आपल्याकडे कडेगाव जे सांगली जिल्ह्यामध्ये आहे, तिथे मुलींसाठी मोफत वसतिगृह सुरू केलं आहे आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या मोफत शिक्षणाची सोय ही त्यांनी केली की सामान्य विद्यार्थिनींना शिक्षण मिळावं, हा त्यामागचा हेतू होता. आपल्याकडे स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट आहे, त्याचं सगळं कामकाज आहे ते आदरणीय शारंगधर साठे सर बघतात आणि त्यामध्ये सुद्धा मोठे मोठे राजेंद्र दुरकर सर आमच्याकडे शिकत होते, थोडे दिवस आमच्याकडे येऊन गेलेले आहेत आणि अतिशय मोठे मोठे कलावंत या आपल्या भारतीय विद्यापीठातून पुढे आलेले आहेत. आणि मला एक फक्त असं सांगायचं होतं की तुम्ही मॅडम अतिशय खूप छान गातात, तुमचा आवाज अतिशय छान आहे. पण एक मूळ म्हणतात की मी पाहिलं की तुम्ही 40गावहून आहात आणि एखादं अहिराणी भाषेत जर एखादं थोडंसं 4 ओळी जर गुणगुणल्या तर आम्हाला खूप छान वाटेल. आमच्यासाठी थोडं गुणगुणाल? हो, नक्की नक्की. मला स्वतःला अहिराणी भाषा आवडते आणि त्यातली गाणी गायला. एक देवीचं गाणं आहे. लाल लाल गडानी व माय तू हिरवा पादरणी, हिरवा पादरणी व माय तू हिरवा पादरणी, लाल लाल गडानी व माय तू हिरवा पादरणी, हिरवा पादरणी व माय तू हिरवा पादरणी, मुनी माय बायले पैठणी डायमन सोयरा, हाऊस मायना मननी, हाऊस मायना मननी सोयरा, हाऊस मायना मननी, मुनी माय बायले पैठणी डायमन सोयरा, हाऊस मायना मननी, हाऊस मायना मननी सोयरा, हाऊस मायना मननी, लाल लाल गडानी व माय तू हिरवा पादरणी, हिरवा पादरणी व माय तू हिरवा पादरणी. क्या बात आहे, क्या बात आहे, खूप छान. आम्हाला भले त्यातला अर्थ कळाला नसेल पूर्ण, परत त्यातली जी भाषा आहे तुमची किंवा जी बांधाची पद्धत, ते गोडवा इतकं छान वाटत होतं ऐकायला. मला या अनुषंगाने एक प्रश्न असा विचारतो मॅडम की आपल्याकडे म्हणजे बहिणाबाई चौधरी असतील किंवा इंदिरा संत आहेत, शांताबाई शेळके आहेत, तर थोडं तुम्ही याबद्दल सांगा की महिलांनी दिलेलं या काव्यामध्ये किंवा गीतांमधला जो गोडवा आहे किंवा यातील जो आशय आहे, तर तुम्ही त्यांचं योगदान कसं तुम्ही या दृष्टीने पाहाल? शांताबाईंचं असेल तर त्यांच्या खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, शांताबाई आहेत, इंदिरा संत आहेत, तर त्यांचं तुम्ही कसं सांगाल की त्यांचं योगदान? त्यांचं योगदान म्हणजे ते मोजमाप करण्याच्या पलीकडे आहे. त्यांनी जे दिलंय मराठी भाषेला, बहिणाबाईंनी अहिराणी भाषेत काव्य केलंय आणि इंदिरा संत आणि म्हणजे शांताबाई शेळके, म्हणजे ह्यांच्याबद्दल आपण बोलावं तेवढं कमी आहे. कारण
त्यांची गाणी, त्यांचा एक-एक शब्द त्यात आपण विचार केला जर आपण एकेका गाण्याचा, तर त्यातून इतकं काही शिकण्यासारखं आहे. म्हणजे आम्हा गायकांना सुद्धा, जे लेखक आहेत त्यांना सुद्धा, कवी आहेत त्यांना, तर म्हणजे ती साधेपणातून आपल्याला किती सुंदर आयुष्य जगता येतं, हे मला वाटतं. कारण अ, असं काही नाहीये, की तुम्हाला मोठा कवी, मोठा गीतकार होण्यासाठी तुम्ही खूप मॉडर्न असलं पाहिजे किंवा तुमचं वेशभूषा, केशभूषा तशी असली पाहिजे. त्या सगळ्या स्त्रिया शांताबाई, इंदिरा संत, बहिणाबाई इतक्या साधं आणि सरळ आयुष्य जगल्या आहेत. आणि त्यांचं आयुष्य बघताना म्हणजे जर आपण फक्त त्यांच्या कविता बघितल्या, तर कदाचित आपण वेगळी कल्पना करू, की अरे ही बाई अशी नसेल बरं का दिसायला. म्हणजे एक मी कुठेतरी किस्सा वाचला होता एक तो कुठल्या कवयित्रीबद्दल होता मला आठवत नाही. पण आशा आशा भोसलेंच्या एका पुस्तकात की इंटरव्ह्यूमध्ये मी वाचलं होतं, की एक म्युझिक डायरेक्टर त्यांच्या घरी गेले. शांताबाई होत्या की अजून कुठल्या कवयित्री होत्या मला नाव आठवत नाही. पण त्यांनी दरवाजा उघडला आणि ते म्हणाले, की "मालकीन को बुलाओ." तर इतक्या त्या साध्या म्हणजे राहायच्या त्यांच्या आयुष्यात. तर त्यांचं फक्त काव्य वाचून, त्यांची गीतं वाचून, ऐकून कोणाला असं वाटणारच नाही, की या स्त्रिया इतक्या साध्या असतील त्यांच्या आयुष्यात. तर मला वाटतं, की साधेपणातूनही आपण किती सुंदर कलाकृती निर्माण करू शकतो. ह्याचं त्यांनी उत्तम उदाहरण आपल्याला दिलेलं. शांताबाईंचं एक गीत मला आठवतंय, की म्हणजे लिहिलं इतकं सुंदरच आहे. माझ्या मते ही वाट दूर जाते शांताबाईंचंच आहे ना? हो. हां. तर त्या केसमध्ये गाणं तर अतिशय सुंदर आहेच आहे. परंतु त्या गाण्यासाठी म्हणजे जे चाल जी आहे, मला वाटतं बाळासाहेबांची चाल आहे त्याला, रंगनाथ मंगेशकरांची. आणि त्या गाण्याचं म्हणजे तुम्ही टेस्टिंगसाठी म्हणून ते गाणं तुम्ही खरंच वापरू शकाल, की इतक्या वरती पण तेवढा आवाज जातो, तेवढाच खाली बेसला पण जातो. म्हणजे जेथे मिळे धरेला तो खूप वरती जातो आणि स्वप्नामधील गावा स्वप्नामधून जावे, स्वप्नातल्या प्रियाला मन मुक्त गीत गावे. तो अगदी खाली बेसचा जो आहे, तर तुम्ही एखाद्या गायकाला जर टेस्टिंगसाठी गाणं असेल, तर ते नक्की तुम्ही द्याल असं मला तरी वाटतंय. तर इतकं सुंदर रचना आहे त्याची. त्याच्यामध्ये एक 2 ओळी फक्त मी सांगतो तुम्हाला, की एक त्या गाण्यामध्ये नाही रेकॉर्डिंगमध्ये, की ही वाट दूर जाते स्वप्नामधील गावा. घे सावली उन्हाला कवळून बाहूपाशी. संध्याकाळचं वर्णन आहे. घे सावली उन्हाला कवळून बाहूपाशी, लावून ओढवेडी खग येती कोटरासी. एक एक चांदणीने नवदीप पाजळावा, माझ्या मनातला का तेथे असेल रावा. ही वाट दूर जाते स्वप्नामधील गावा. शांताबाईंच्या ओळी आहेत. तर खूप छान मॅडम. तर मगाशी तुम्ही ए जिंदगी ऐकलं, तर माझी तर खरं मगाशी इच्छा होती, की तुम्ही सांज ढले म्हणावं किंवा उत्सवमधलं एखादं तरी 2 ओळी जरी गुणगुणल्या त्यातल्या, तरी खूप छान वाटेल मला. कारण वाडकर साहेबांच्या आवाजातले आम्ही खूप चाहते आहोत वाडकर साहेबांचे. आणि तुमच्या निमित्तानं आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचतोय असं खरं तर आम्हाला वाटतंय. म्हणजे तुम्हाला त्यांच्यातला पाहिलेला भास आम्हाला त्यांच्यातला होतोय. तर वाडकर साहेबांचे आम्ही खूपदा कार्यक्रम लाईव्ह पण ऐकलेत. आणि त्यातला तर तुम्ही खरं उत्सवमधला जर एखादा तरी अंतरा जो काही गायला तर खूप छान म्हणजे आम्हाला आवडेल नक्की ऐकायला. तुम्ही गाणं सांगाल स्पेसिफिक किंवा मग सांजे ढले? सांजे ढले चालेल. अगदी, अगदी चालेल. अगदी. सांजे ढले ऍक्च्युअली खूप अवघड गाणं आहे. मी बऱ्याच खरं आहे. दिवसात प्रॅक्टिस खरं आहे. केलं नाही. त्यामुळे मी फक्त एकच ओळ ऐकवते आता. अगदी, अगदी. सांज ढले गगन तले, सांज ढले गगन तले, हम कितने के साथी. सध्या क्या एवढंच बात! ऐकव. खूप छान, खूप छान मॅडम. मस्त. आता फक्त आता फारच असं मुलांना हे नको व्हायला म्हणजे मुलांच्या दृष्टीने तुम्ही सांगाल, ही मुलं इंजिनिअरिंगची मुलं आहेत आणि त्यांचा अभ्यासाचा शेड्यूल आणि हे तर तुम्ही मगाशी सांगितलंच, की तुम्हाला दोन्हीकडे हे करताना खूप बॅलन्स करणं फार अवघड जात होतं. परंतु विद्यार्थ्यांना थोडा स्ट्रेस रिलीज करण्यासाठी किंवा याच्यासाठी तुम्ही संगीत हे माध्यम कसं त्याचा उपयोग काय आहे किंवा त्याचं महत्त्व काय? याचा विद्यार्थ्यांना सांगितलं तर बरं पडेल. ऍक्च्युली मला अवघड जात होतं कारण मी हॉस्टेलला राहत होते. पण असे बरेच विद्यार्थी असतील, की जे आपल्या घरी राहून इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेत असतील. तुम्हाला वेळेचं बंधन नसतं. आम्हाला हॉस्टेलला संध्याकाळी 7च्या आधी हॉस्टेलला पोहोचावं लागायचं. त्यामुळे संध्याकाळी 7 ते 8 मला गाण्याचा क्लास करता यायचा नाही. तर
जे आहेत घरी राहतात ज्यांना हॉस्टेलचं रेस्ट्रिक्शन असेल किंवा जी मुलं असतील मुलांना हॉस्टेलचं रेस्ट्रिक्शन नसतं संध्याकाळी 10 रात्री 10-11चा टाइमिंग तर तुम्ही जो वेळ रिकामा आहे त्यावेळेला तुम्ही गाणं शिकू शकता, तुम्ही रियाज करू शकता आणि मला त्यावेळेला जमलं नाही. कदाचित मी असं म्हणेन, की त्यावेळेला माझ्या डोक्यात असं होतं, की ठीक आहे काही वर्ष 2-4 वर्ष मला हे करता येत नाही, पण जॉब करायला लागल्यावर मग मी हे करूच शकणार आहे. पण तेव्हा मला माहिती नव्हतं जॉब करायला लागल्यावरती पण असं काही होईल. तर आता तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी आत्ता आहे या क्षणाचा उपयोग करून घ्या, की भविष्यात मला काय करता येईल आणि काय नाही हे ठरवण्यापेक्षा आणि अ, असे बरेच गायक आहेत, की जे दोन्ही करियर सुद्धा सायमल्टेनियसली फॉलो करतात. तर आनंद भाटे हे खूप उत्तम उदाहरण आहे. म्हणजे मला एकदा त्यांना भेटून विचारायचंय, की तुम्ही हे कसं जमवता? कारण ते सॉफ्टवेअर कंपनीत खूप खूप टॉपच्या पोझिशनला ते काम करतात. प्लस ते उत्तम शास्त्रीय गायक आहेत. ते गाण्याचे कार्यक्रम, रियाज सगळं काही करतात. शंकर महादेवन सुद्धा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे. शंकर महादेवन आता इंजिनिअरिंग पर्स्यू करत नाही. फुल टाईम म्युझिक फॉलो करतात. बट येस, there are many musicians who have a engineering or medical or some other professional degree and they are following music as well. तर एक बॅलन्स आपल्याला जर आपण प्रयत्न केला तर नक्कीच साधता येऊ शकतो. त्यावेळेला कदाचित मी असं म्हणेन, की थोडं मला ते मॅच्युरिटी कमी होती किंवा त्यावेळेचं माझ्या आजूबाजूचं वातावरण असं होतं, की मला सल्ला देणारे किंवा ज्यांच्याकडून मला इन्स्पिरेशन घेता येईल असे सगळे लोकं मला हेच सांगत होते, की "तू आत्ता सध्या अभ्यासावर कॉन्सन्ट्रेट कर." आणि ते एक वय असं होतं, की आजूबाजूचं वातावरणाचा इन्फ्लुअन्स आपल्यावर होण्याचे एक ते वय असतं, की आजूबाजूला जे होतंय त्याचा खूप इन्फ्लुअन्स आपल्यावर पडतो आणि अनफॉर्च्युनेटली माझ्या आजूबाजूला असे फार कलाकार नव्हते किंवा कलेबद्दल खूप पॅशनेट असणारी लोकं त्या काळात मला नाही भेटली. पण कॉलेज लाईफमध्ये बाकी तुम्हाला सर्वांना भेटूच शकतात अशी लोकं. त्यांच्या म्युझिकबद्दल किंवा त्यांच्यात कुठली कला असेल तिच्याबद्दल खूप पॅशनेट आहेत आणि मला हे फॉलो करायचंय, मला हे सोडायचं नाही. अशी लोकं तुम्हाला भेटू शकतात. तर तुमचं तसं एक सर्कल असलं पाहिजे. तर तुम्हाला तशी लोकं किती भेटतात ते खूप इम्पोर्टंट आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही स्वतःला किती मोटिव्हेटेड ठेवताय. माझ्या काळात मी जेव्हा कॉलेजला होते, तर जरी खूप पूर्वीचा जमाना नसला तरी पण आतापेक्षा एक 8-10 वर्षांपूर्वी, 10-12 वर्षांपूर्वी नक्कीच सोशल मीडिया आणि ह्या सगळ्या गोष्टी नव्हत्या. आत्ता सोशल मीडिया, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube ह्या गोष्टी एवढ्या वाईडस्प्रेड झालेल्या आहेत, की आपल्याला म्हणजे माझ्या काळात मी कॉलेजला होते, तर तेव्हा मला 7 वाजेचा इन टाईम जरी असता आणि YouTube माझ्या हातात असतं, तेव्हा YouTube एवढं वाईडस्प्रेड असतं, तर YouTubeवरनं मी गाणं शिकले असते. तर तुम्हाला ह्या संधी आजकाल अवेलेबल आहेत. YouTubeवर किती व्हिडिओज आहेत, की तुम्ही कसं गावं, सूर कसा लावावा, तालात कसं गावं, प्रत्येक तालाची माहिती. त्यानंतर म्हणजे अशा खूप लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज आज अवेलेबल आहेत घरात बसून पण. तर जेव्हा मी कॉलेजला शिकत होते तेव्हा हे सगळं नव्हतं. तेव्हा असं काही मला कुठली संधी डोळ्यासमोर नाही आली, की अरे मी हे करू शकते जर मला गाण्याच्या क्लासला जाता येत नाही. किंवा मला हॉस्टेलच्या रूममध्ये अजून 2 मुली आहेत माझ्याबरोबर, तर मी रियाज नाही करू शकत. पण मी कानात हेडफोन घालून मी गाणी ऐकू शकते. तर असं काहीतरी त्यावेळेला तेवढं इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस किंवा हे म्हणजे मी खूप पूर्वीच्या जमान्यातली नाहीये, पण नक्कीच आता सोशल मीडिया दर 1 वर्ष काय 1-1 महिन्यांनी नवीन-नवीन टेक्नॉलॉजी आणि नवीन-नवीन गॅजेट्स सगळे मार्केटमध्ये येतात. तर मला असं वाटतं, की आता तुमच्यासाठी तो बॅलन्स साधणं कंपॅरेटिव्हली ईझी झालंय, सोपं झालंय. जसं आधीच्या काळात होतं त्यापेक्षा. सोशल मीडिया नसताना जे होतं किंवा टेक्नॉलॉजी एवढी डेव्हलप झालेली नसताना जे चॅलेंजेस होते, ते चॅलेंजेस आता बऱ्यापैकी कमी झालेत आणि आता तुम्हाला खरंच पॅशनेटली जर फॉलो करायचं असेल तुमचं जे आर्ट आहे, तुमची कला आहे, तर तुम्हाला बरेचसे सोर्सेस अवेलेबल आहेत. यही मैडम मैं पूछना था कि ये लाइट म्यूजिक और क्लासिकल थोड़ा बच्चों को थोड़ा डिफरेंशिएट थोड़ा करो कि थोड़ा वो थोड़ा क्लासिकल के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है और लाइट का उनका ज़्यादा ये रहता है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे वहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं खुद म्यूज़िक सिखाती हूँ, 3 साल मैंने सुरेश जी के पास सीखा, उसके बाद मैं अब उनकी अकेडमी में ही आजीवासन म्यूज़िक अकेडमी है मुंबई में, वहाँ पर मैं म्यूज़िक सिखाती भी हूँ अभी। तो
आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड तो होते हैं बट उनको क्लासिकल म्यूजिक में उतना इंटरेस्ट नहीं होता। बट वो ये समझ नहीं पाते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक हर चीज का बेस है। अगर आप गाना सीखना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो एबीसीडी से पहले सीखना पड़ेगा। तो कैसे विदाउट एबीसीडी आप इंग्लिश कैसे सीखोगे? तो हाँ, एबीसीडी ऑफिशियली सीखे बिना आप थिंकिंग की इंग्लिश लैंग्वेज शायद बात करने लगोगे, बट वो लिखना ये करना मतलब पूरी तरह से आप ऑलराउंडर नहीं होगे उस लैंग्वेज में। तो जिनको सही में एक बहुत अच्छा सिंगर बनना है उनको क्लासिकल म्यूजिक सीखना जरूरी है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हमको क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखना है, हमको बॉलीवुड सॉन्ग सीखना है। पर जब वो बॉलीवुड सॉन्ग सीखने के लिए जाते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट क्या होती है कि मैम हमको सीखना है मुझे ढूंढना सुन, फिर मैम हमको सीखना है अलबेला सजना आयो है। तो यही अगर हम उनको राग अहिर भैरव करके बैठ के सिखाएंगे तो वो नहीं सीखेंगे कि हम ये बोरिंग है, राग अहिर भैरव राग नहीं सीखना है। वही अगर हम लोग किसी फिल्म में डाल के दे देंगे उनको, हम दिल दे चुके सनम अलबेला सजन आयो रे, तो वो गाना उनको अच्छा लगने लगता है और वो बोलते हैं हमको ये गाना सीखना है। तो मुझे लगता है कि आप जो ग्लैमर छोड़कर उसके पीछे जो बेस है, फाउंडेशन है, उसको पहले देखो कि राइट। आपको उस तरह से गाना गाना है। अलबेला सजन भी आपको गाना है, आपको मेरे ढोलना भी गाना है। तो आप क्लासिकल म्यूजिक सीखे बिना ये सब नहीं कर सकते। तो सही है। आपको अगर अच्छा सिंगर बनना है तो आपको क्लासिकल म्यूजिक सीखना ही पड़ेगा, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है मैडम, आपने वो म्यूजिकल अंताक्षरी का ये किया था, क्लोजअप अंताक्षरी के में आप पार्टिसिपेट हुए थे, और रविंद्र जैन साहब के साथ में भी आपने ये किया था। तो कुछ रविंद्र जैन साहब का कुछ गाना एक आधा पेश कर सकते हैं? रविंद्र जैन जी तो बहुत बड़े बहुत म्यूजिशियन, बड़े, बहुत बड़े आदमी, सच में। हम लोग बोलने के लिए शब्द कम पड़ते हैं ऐसा। और सिर्फ कम कंपोजर ही नहीं, वो लिखते भी थे मतलब। और या उनको हमारे सामने हमने देखा है कि वर्ड्स ऐसे याद आते थे उनको। कहीं रिकॉर्डिंग चल रही है और उनको किसी ने बोला कि ये लाइन सूट नहीं हो रहा है गाने में, तो फटाफट 2 मिनट में सोच के अच्छा ये लाइन लिख दो उसकी जगह, ये मतलब। और वो खुद ब्लाइंड थे तो देख नहीं पाते थे, बट उन्होंने जो गाने लिखे हैं हुस्न पहाड़ों का, तो मतलब हम्म। उन्होंने कभी देख देख नहीं सके वो, तो उन्होंने कैसे देखा हुस्न पहाड़ों का? तो ये गाना मैं 2 लाइन आपको सुनने देती हूँ। तो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, तो हम यही समझ नहीं पाते थे कि उन्होंने ये गाना तो लिखा है हुस्न पहाड़ों का, ओ साहिबा क्या कहना, और उस गाने में राम पूरा तेरी मतलब गंगा मैली का। आगे सब डिस्क्रिप्शन है पहाड़ों का। तो मतलब वो जो प्रतिभा थी, वो जो टैलेंट था, तो हमारी समझ से परे है, मैं तो कहूँगी। हुस्न पहाड़ों का, ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना कि बारों की, यहाँ मौसम खानों का, रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, गर्म जवानी है। ये गाना भी सुरेश जी ने और लता जी ने गाया। या ये राम तेरी गंगा मैली से गाना है मेरे ख्याल से। और उनका जो गंगा हमारी करके गाना है सूरज जी का, तो इतना 2 लाइन ही है लेकिन इतने अच्छे लगते हैं। गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली
हो गई पापियों के पाप धोते धोते। बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है रविंद्र साहब, सच में बोल रहा हूँ। मैडम पवार सर बात करें अभी। यस मैम। आप भी अच्छा गा लेते हो, मैंने कहा। अरे नहीं, थोड़ा इतना नहीं है। पवार सर। यस मैडम, आपका यूट्यूब चैनल बहुत ही फेमस है, तो मैं कल सर्च कर रहा था उस पर गाने, तो उसमें से आपने एक गाना गाया था, ये मोह मोह के धागे। बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, बहुत ही स्वीट सॉन्ग है। तो उसने आपने उसको कवर किया था, 2 सॉन्ग आपने शायद ये किए थे, तो वो थोड़ा आप गा देंगे हमारे लिए तो बहुत। और मुझे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वो पूरा जो गाना है वो, मतलब उसका जो फील है वो पूरे गाने में है, तो आप 1 सॉन्ग वो पूरा कड़वा एक गाए तो अंतरा उसका अंतरा गाए तो बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट्स के लिए गुजारिश करूंगा, बहुत ध्यान से सुनो, कितनी मिठास है इनकी आवाज़ में और कितने अच्छे तरीके से वो गाते हैं। ठीक है, ओके मैम। मोह के धागे और लाल इश्क, ये 2 हमने मैशअप किया था, क्योंकि वो सोच रहे थे, एक्चुअली आजकल मैशअप का ट्रेंड बहुत चल रहा है, और बहुत लोग, और ये अच्छा भी लगता है, मतलब एक गाना प्लेन जो हम, वो भी अच्छा ही है, बट प्लेन एक गाना गाने से थोड़ा लोगों को भी अच्छा लगता है कि 2-3 गाने मिक्स, और वो मिक्स करने में भी हम लोग स्ट्रेट मिक्स नहीं कर रहे कि एक गाना हो गया फिर दूसरा गाना फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट किया। हम सोचते हैं फिर ये लाइन के साथ कौन सा लाइन सूट करेगा फिर आगे, तो उस तरह से वो गाने मिक्स करते हैं। तो ये दोनों गाने एक्चुअली एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से जेल हो गए। मैं ढूंढ रही थी कि मुझे मोमो के धागे का कवर बनाना था, बट सिर्फ मोमो के धागे नहीं बनाना था, उसमें कुछ 2-4 लाइन दूसरे गाने का ऐड करना था। बट कुछ गाने सोचे, मोमो के धागे जो है राग यमन पर आधारित है, शास्त्रीय संगीत यमन राग है, और यमन पर आधारित है, कुछ मिश्र दूसरे स्वर भी है उस गाने में, बट मेन राग जो बेस है वो राग यमन पर है। तो ऐसे कुछ गाने फिर लाल इश्क मैंने सडनली सुना, और मैं और जो मेरे अरेंजर है, म्यूजिक अरेंजर, तो हम दोनों ने सुना और हम दोनों को लगा कि ये दोनों गाने बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जेल हो, और वो हुआ भी है, क्योंकि इस तरह से हमने एग्जैक्टली ट्रैक जेल हुए मैडम वो, मतलब बहुत ही भी, स्मूथ फील आता है, बहुत ही स्वीट और बहुत ही स्मूथ फील आता है उसमें। लाल इश्क भी वो यमन पर ही आधारित है गाना। वो इस तरह से हमने वो 2 गाने मिक्सचर कर दिया दोनों गानों का, तो वो सुना थी। मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं मुझे, तेरी को हरा हाय सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह के धागे तेरी उंगली का, कोई तो हटो हमारा, किस तरह की सोचे, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर, ये लाल इश्क, तुझ संग बैर लगाया था, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, वो रहा न मैं फिर अपने जैसा, तू होगा तेरा पागल, तू है चुना, कैसे तूने कहा
दुनिया ने कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है, मैं रात, आना दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों का, कोई तो है तो तुम्हारा, करना मेरा ये तुझे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात आहे मॅडम, खूप सुंदर. अं, याच अनुषंगाने एक प्रश्न विचारत होता की एक टेक्निकल थोड़ा प्रश्न है कि हार्मनी आपण ऐकतो, हार्मनी म्हणजे काय असतं, मतलब हार्मनी क्या होता है और मेलोडी क्या होता है. मेलोडियस सॉन्ग सुनते बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन मेलोडियस का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, वो थोड़ा आप हमारे स्टूडेंट के लिए बताएंगे तो बहुत अच्छा. मूवी का मतलब है नॉर्मल कोई भी ट्यून जो कानों को मीठी लगे सुनने में। ट्यून बहुत सारे होते हैं, अभी कुछ सॉन्ग जो होते हैं बस रिदम के हिसाब से चलते हैं, उसमें मेलोडी नहीं होती है। मतलब 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, तो ये बस रिदम के हिसाब से चल रहा है। ये पॉपुलर है आजकल, बट ठीक है, हर गाने का अपना स्टाइल है। मतलब येस. आई डोंट फील कि एनी म्यूजिक इज बैड। जो मतलब अगर उसमें कुछ अच्छी बात नहीं होती तो वो इतना पॉपुलर नहीं होता। तो हर चीज का अपना एक रेलेवेंस है। बट ये जो हुआ वो रिदम के हिसाब से गाना हुआ, मेलेडी उसमें इतना नहीं। बट बाकी जो सॉन्ग्स है जैसे अब मुंह मोह के गाया, लाल इश्क, तो सोलफुल सॉन्ग्स की जिनमें एक धुन होती है जो कान को सुनने में मीठी लगती है, तो उसको हम मेलेडी कहते हैं। और हार्मनी का मतलब है कि जो मेलेडी के ही साथ मैच करता है, बट उसका ट्यून थोड़ा अलग होता है मेलेडी से। तो हार्मनी मतलब अगर हम लोग मैं अगर गा रही हूँ ये लाल इश्क, ये मेरा मेलेडी है। ये लाल इश्क, ये हार्मनी हुआ। तो मतलब ये टेक्निकल चीजें हैं, बट हार्मनी का मतलब है मेन ट्यून जो चल रहा है, मेलोडी जो चल रहा है, उसी से मैच करने वाले अलग वेवलेंथ के सुर को हम उसी लाइन को अलग वेवलेंथ में गाना। बट वो अलग मतलब एकदम आउट ऑफ ट्यून नहीं लगना चाहिए, वो हार्मनी के साथ अच्छा लगना चाहिए। तो आप भी गाते हो, अगर कोई क्लासिकल म्यूजिक किसी को पता है, सुर पता है यहाँ पे, तो सा ग प, ये 3 सुरों का हार्मनी होता है। अगर मैं गा रही हूँ सा, तो और कोई उसी समय अगर गाएगा ग, तो सा ग, ये हार्मनी हो गया। एक सा गा रहा है, एक ग गा रहा है, तो जो 2 सुर एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं, सुरों की येस. frequency होती है। तो जो सुर एक दूसरे के रेजोनेट करते हैं, तो उनको एक साथ 2 अलग-अलग इंसान या 2 अलग-अलग टीम, ग्रुप्स, उन्होंने गाना, तो वो एक साथ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उसको हार्मनी कहते हैं। ओके, थैंक यू मैम, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने समझा है ये. मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई क्वेश्चंस है, फरमाइश है तो आप पूछ सकते हो अभी, लेकिन आपको रेज योर हैंड एंड देन आस्क योर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड. हुजैफ, हुजैफ, ask if there Yes, any, sir. if there any choices of songs from students or from Yes. your side. Yes, everyone. We have like given the permission for all the attendees to unmute. So, किसी को अगर कोई question पूछना है मैम से, so please आप you can come forward and ask your questions. Or if you want to request ma'am to sing 2 lines of one particular song, then please go ahead. Yes, Patkar sir, please. मॅडम इतकं सुंदर तुम्ही गातायत, एखादी लावणी होऊन जाऊ द्या ना. अरे Yes, yes.
हॅलो. हाँ पाटील सर बोला. संकेत सर. मॅडम लावणीच्या आधी एक छोटासा प्रश्न की मी बऱ्याच वेळा ऐकलं की सगळ्या सिंगर्स लोकांना डाएटचे खूप कॉन्शियस असतात. हे खायचं नाही, ते खायचं नाही, हे नाही, ते नाही. त्याबद्दल थोडंसं सांगाल का? की ॲक्च्युअल डाएटचा खरोखरच इफेक्ट होतो का? आणि कितपत? ऍक्च्युली डाएटचं जे आहे ते प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल डिफर करतं. बिकॉज सगळ्यांची बॉडी टेंडन्सी वेगळी असते. ॲज पर आय एम कन्सर्न्ड माझं जे आहे ते मला थोडासा सर्दी खोकला पटकन लवकर जास्ती खराब होतो. थंड खाल्लं किंवा हे खाल्लं तर मला थोडं ते अलर्जी सारखा त्रास आहे तो मी अवॉइड करते. म्हणजे नेहमी नाही, पण जेव्हा परफॉर्मन्स असेल की आता उद्या किंवा 2 दिवसांनी रेकॉर्डिंग आहे, काही शूट आहे, शोज आहे, काही परफॉर्म मला करायचंय, तर मी अव्हॉइड करते त्याच्या 1 आठवडा आधीपासून. जर हां, मला आता पुढे 8 दिवस, 15 दिवस काही नसेल तर मी खाते. बट अगेन आय हॅव सीन सिंगर्स हू कॅन ईट आईस्क्रीम एव्हरी डे, पण त्यांना काही त्रास होत नाही. तर मला असं वाटतं की हे प्रत्येकाची जी टेंडन्सी आहे, बॉडी टेंडन्सी, तर जसं आपण म्हणतो की काही जण खूप खातात पण तरी बारीकच असतात आणि काही जण थोडं खाल्लं तरी लठ्ठ होतात. तर ते तसं इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हाऊ युअर बॉडी इज रिएक्टिंग टू इट. तर मला वाटतं प्रत्येकाने आपली बॉडी कशी रिस्पॉन्ड करते त्या गोष्टीला ते ओळखायचं आणि त्यावरून ठरवायचं. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद. एक क्वेश्चन था. Yes. एज अ नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड मैम, क्लासिकल म्यूजिक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन जो उसमें ट्रेडिशंस या स्ट्रिक्ट रूल्स या जो फ्रीडम नहीं है उसकी वजह से लिमिटेड होता जा रहा है या रेयर होता जा रहा है. जैसे मुझे अगर स्टडी ऑप्ट करनी है तो वो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक ऑप्ट करना है तो उसके जो रूल्स होते हैं उसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है. हमारे यहाँ पे एक ही गुरु है, अगर उसको मुझे ऑप्ट करना है तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है. या जो एक घराना कंसेप्ट है उसमें हम दूसरी चीजें नहीं गा सकते, या मेरा गुरु ने गंडा बंधन कर दिया तो मैं उनके आगे कभी जा नहीं सकता, कभी मैं उनके आगे गा नहीं सकता, मैं फॉल्सिटो नहीं गा सकता. इन ये चीजें देखते हुए अगर नॉन म्यूजिकल वाला बैकग्राउंड है तो ये बहुत हार्ड लगता है, या कोई नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड वाला सोच भी नहीं सकता कि हम जा सके म्यूजिक में, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड कर दिया है. जगह जगह पे टीचर्स नहीं है या उनके स्ट्रिक्ट रूल के वजह से वो बाउंड होता जा रहा है. मतलब वो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है सोसाइटी की, जैसी सोसाइटी है उसके वजह से. तो ये सही है क्या मेरी मैडम धारणा? देखो, क्लासिकल म्यूजिक सीखने में भी 2 तरह का सीखना होता है, ये मैं मानती हूँ कि कुछ लोग हैं जो उनको क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना है, कि फुल टाइम उनको क्लासिकल ही परफॉर्म करना है. हमारे इंडिया में 2 तरह के सिंगर्स हैं. एक जो है, या मैं कहूँगी 3 तरह के सिंगर्स हैं. एक जो है वो फुल टाइम क्लासिकल म्यूजिक में ही है, जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी हो गए, किशोरी तैयामुनकर, बहुत नाम हम लोग इसमें ले सकते हैं, पंडित जसराज, तो आज के ज़माने के आनंद भट्टे, पंडित संजीव अभ्यंकर. बट ये लोग जो है प्योरली क्लासिकल म्यूजिक को डिवोटेड है. उन्होंने, जैसे आप बोल रहे हो, गंडा बंधन करके गुरु के घर में जाके वहां रह के हार्डकोर क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, घराना स्टाइल का जो आप कह रहे हो. तो दूसरे कुछ लोग हैं जो प्योरली प्लेबैक सिंगिंग में है, बॉलीवुड सिंगिंग, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, सुनिधि चौहान. बट ये लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है. तो आप क्या करना चाहते हो, आप ये पहले डिसाइड करो. अगर आपको फुल टाइम क्लासिकल सिंगर बनना है, क्लासिकल वोकलिस्ट बनना है, तो आपको वो घराना स्टाइल का, वो गंडा बंधन स्टाइल का म्यूजिक सीखना पड़ेगा. बट उसमें भी मैं कहूंगी कि आजकल जो है रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम हो गए हैं. पुराने जमाने में ये था कि गुरु जैसे कहेंगे वैसे ही हमको करना पड़ेगा, गुरु के घर में जाके रहना पड़ेगा, उनके मूड के अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा. वो कहेंगे नहीं गाना है, ये नहीं गाना है तो वो नहीं गाना है, वो कहेंगे ये गाना है तो वही गाना है. तो ये सब पुराने ज़माने में होता था. बट आजकल ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम की गई है. मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ. मैं
सुरेश जी के साथ साथ मैं विदुषी अर्चना ताई कान्हेरे, जो बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर है, वो क्लासिकल और मराठी नाट्य संगीत में बहुत एक नवाजा हुआ नाम है अर्चना कान्हेरे। अगर आप लोग देखोगे, जो हे सुरानो चंद्रवा मराठी नाट्य संगीत अगर किसी ने सुना है, वो मेरी गुरुजी अर्चना कान्हेरे ताई का गाने हैं, उन्होंने गाया ओरिजिनल रिकॉर्ड। तो वो बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर है, उनके पास मैं अभी भी सीखती हूँ। मैं पिछले कुछ साल जब से सुरेश जी के पास सीखना शुरू कर दिया, उसके कुछ दिनों बाद ही अर्चना ताई के पास भी मैंने हार्डकोर शुरू कर दिया। तो वो उनके पास मैं सीखती हूँ, बट वो मुझे कभी भी लाइट गाने से रोकती नहीं है। पर वो मुझे बताती है, फीडबैक देती है कि हाँ, वो भी मेरे गाने देखती है यूट्यूब के, बहुत मतलब कस के देखती है कि कहाँ मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, मिस्टेक तो नहीं किया, और वो मुझे बताती है ये गाना अच्छा हुआ, इसमें ये अच्छा नहीं था, इसमें तुम और अच्छा कर सकते थे। तो मतलब आजकल जो क्लासिकल के गुरु भी है, वो इतने पहले जैसे स्ट्रिक्ट नहीं रहे। उनको ये चाहिए कि मेरा शिष्य जो है वो क्लासिकल सीखे, और उसके बेस पे उसको अगर लाइट भी गाना है तो वो लाइट अच्छा गाए, क्लासिकल सीख के लाइट गाना उसका और इम्प्रूव करे। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन काफी सुधर गई है, और आपको अगर करियर लाइट म्यूजिक में करना है तो आपको क्लासिकल का बेस लेना पड़ेगा, क्लासिकल चीजें सीखनी पड़ेगी, बट उतने स्ट्रिक्ट वे से नहीं जितना हार्डकोर क्लासिकल सीखने वाले को। और अगर आपको फुल टाइम क्लासिकल म्यूजिशियन भी बनना है तो उसमें भी आजकल रेस्ट्रिक्शन काफी यूज हो गए हैं। तो उस तरह से आपको गुरु मिलेंगे तो मतलब आपकी जो परेशानियां या आप जो हार्डशिप फेस कर रहे हो, तो मुझे लगता है डेफिनेटली कम हो जाएगी उस तरह से, उस नजरिए से अगर आप गुरु देखोगे ढूंढोगे। ओके मॅडम. पाटकर सरांची फरमाईश होती, ती आपण आता तुम्ही ऐक. चिरात आज आलिया भरात धड धड काळ जात माझ्या माईन, रतिक वाकुट झाला येड पित जीव झाला येड पित, त्यात नाही भरवसा तोल राहीना, राखली की मर्जी तुमच्या जोडीनं मी आले, फिरतीच्या या रंगीराया चिंबवरी मी झाले, प्राण सोडा तरी काळ ये नाही बरी, पुन्हा भेटू का तरी साधना, मला जाऊ त्यानं घरी, आता वाजले की 12, मला जाऊ त्यानं घरी, आता वाजले की 12, मला जाऊ त्यानं घरी, आता वाजले की 12, 12. जी 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 जी. रिदमला खूप अवघड गाणं आहे. नाही, खूप अवघड आहे. आवडी म्हटल्यावर मला वाटलं की हे गायलं पाहिजे. येस हुजेफ. यस, थैंक यू सो मच मैम. मैम मेरा क्वेश्चन एक थोड़ा सा मतलब एक टोटली ऑफ द टॉपिक रिगार्डिंग सिंगिंग है. इट्स जो उसका थोड़ा टेक्निकल वे में था कि मैंने सुना कि म्यूज़िक और इसमें भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं. तो मैम उस टॉपिक पे थोड़ा आप कुछ अगर लाइट डाल सके कि वो एक्चुअली होता क्या है, कि म्यूज़िक में भी आपको पेपर्स देने होते हैं, फिर आप एक लेवल पे पहुँचते हो, वो मैम आप बता सकते हैं थोड़ा तो? जैसे मैंने अभी इंटरव्यू शुरू हुआ था तो मैंने बताया थर्ड स्टैंडर्ड से म्यूजिक के बाद जनरली जो बचपन से हम लोग म्यूजिक को एग्जाम पैटर्न कर नहीं, तो क्लासिकल म्यूजिक के एग्जाम्स होते हैं अभी. और जैसे हम लोग ईयर्स में हमारे स्कूल में जैसे सीखते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड म्यूजिक की फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या ईयर भी कहते हैं. 8 साल अगर आप ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी तो कह सकते हो कि इट इज इक्विवेलेंट टू बीए म्यूजिक. अगर आप 12th के बाद म्यूजिक स्पेशलिटी आर्ट लेते हो और म्यूजिक सब्जेक्ट लेते हैं, तो बीए कंप्लीट करने के बाद आपको बीए म्यूजिक का डिग्री मिलेगा. बट आप 7 साल विशारद कंप्लीट करोगे तो उसके बाद जो डिग्री मिलता है वो उसके इक्विवेलेंट ही समझा जाता है.
और उसके बाद भी सर्टिफिकेशन है, उसके बाद अलंकार होता है। तो जिनको हायर लेवल म्यूजिक परस्यू करना है फिर वो एमए के जैसा एमए की तरफ चला जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये सब क्लासिकल म्यूजिक की डिग्री है। ओके, तो मैम जो लाइक अगर कोई अपकमिंग जो सिंगर्स वगैरह रहते हैं तो डू दे जनरली प्रेफर टू गो फॉर दी सर्टिफिकेशन, या वो सिर्फ अपने खुद से ही जो म्यूजिक कंपोजिशन है वो ऐसा स्टार्ट कर देते हैं, जैसे प्रोफेशनली भी अगर बोला जाए तो? पर्सनली अब अगर इसमें कुछ लोग लोग जो कहते हैं आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट गाना ऊपर से ही मिला, तो वो तब उनको वो सेंस बहुत अच्छा होता है, म्यूजिकल सेंस। वो थोड़ा बहुत सीखते हैं, तुरंत वो शुरू कर दे हैं म्यूजिक। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका ये होगा कि किशोर कुमार, किशोर दा जो थे वो म्यूजिक बिल्कुल नहीं सीखे, कुछ भी नहीं, फिर भी वो हर स्टाइल के गाने इन्होंने उन्होंने काफी पॉपुलर किए। मतलब वो पर वो क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग हो, वो कोई कुछ भी किसी भी तरह का गाना हो, किशोर दा ने गा के पॉपुलर किया। और मैंने भीमसेन जोशी जी का इंटरव्यू सुना था, वो इतने बड़े क्लासिकल सिंगर थे, उन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ किशोर कुमार ने गाना नहीं सीखा, वरना हम सबकी कुश्ती हो जाती। तो मतलब किशोर दा वो उनको कुछ वो म्यूजिकल सेंस बाय बर्थ वो लेकर आए थे, बट हर कोई ऐसे नहीं होता, तो सीखना पड़ता है। बाकी जो मेजोरिटी ऑफ म्यूजिशियंस को सीखना पड़ता है। अब उसमें भी जिनको अगर फुल टाइम म्यूजिक में करियर बनाना है, बट उनको ये है कि म्यूजिक में भी हमको एक जॉब चाहिए स्टेडी, और साइड बाय साइड हम लोग म्यूजिक करते रहेंगे, जैसे म्यूजिक टीचिंग का जॉब हो गया। तो अगर आपको म्यूजिक टीचिंग करना है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन जरूरी है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन जरूरी है। आपको फिल्मों में गाने के लिए, प्लेबैक या प्रोग्राम शोज करने के लिए आपको अपना हुनर ही दिखाना। आपको टीचिंग के लिए आपको हुनर भी चाहिए कि आपको गाना गाना भी आना चाहिए, पर आपके पास अगर अच्छा गा भी रहे हो बट सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आप सिखाने के लिए आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। तो उसके लिए अगर आपको टीचिंग फील्ड में आप जाना चाहते हो तो आपको वो सर्टिफिकेशन जरूरी है। अगर आप टोटली सिर्फ प्रोफेशनल सिंगिंग में जाना चाहते हो तो उसमें आपका सिंगिंग बेस डेवलप करने के लिए आपको सीखना जरूरी है, बट फिर वो 7 साल ही सीखना ऐसा जरूरी नहीं है। आप 3 साल सीखोगे और आप उतना एक्सपर्ट हो गए, तो उसमें अगेन हम जो कॉलेज में भी सीखते हैं थेरोटिकल लर्निंग एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। कुछ लोग 2 साल ही थियोरटिकली मतलब एक दो ही एग्जाम्स देते हैं, बट वो साइड बाय साइड शोज में गाते रहते हैं, प्रोग्राम्स में गाते रहते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स करते रहते हैं। तो वो मतलब कोरस में हो या किसी और चीज में हो, तो वो प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट करके सीख जाते हैं वो लोग। और कुछ लोग 7 एग्जाम्स दे के भी इतना नहीं सीख पाते क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। तो वो एक अगेन जैसा हमारा नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके जैसा ही म्यूजिक का भी है। तो थेरोटिकल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग दोनों को कंबाइन करना और दोनों का बैलेंस रखना इम्पोर्टेंट है अच्छा सिंगर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज लाइक बहुत अच्छे से वो पूरा डिफाइन हो गया कि क्या वो एक कंफ्यूजन थे। थैंक यू सो मच। ओके मैडम, बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी फरमाइश है और फैकल्टी मेंबर्स की भी फरमाइश है। आपने शुरुआत में जो गाना गाया था ए जिंदगी गले लगा ले, तो वो गाना थोड़ा आंतरिक के साथ वंस मोर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गले लगा ले ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हम ये बहाने से
छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर दिया हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर दिया तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ला 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 तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी गल लगा दे है जिंदगी गल लगा दे हमने भी तेरे गम को गले से लगाया है ना है जिंदगी गल लगा दे है जिंदगी गल लगा दे क्या बात है मैडम, क्या बात गल लगा दे थँक्यू सो मच मॅम. खूप चांगलं वाटलं तुमच्याशी बोलून. खरं तर हे सेशन संपूच नाही असं वाटतंय, की प्रश्न येत राहावेत, गाणं तुमच्याकडून ऐकत राहावं असंच वाटत राहते. पण आपल्याला टाईम कन्सर्न आहेत, त्यामुळं थोडं थांबावं लागेल. पण आम्ही नेक्स्ट टाईम तुम्हाला नक्की थोडा जास्त वेळ घेऊन तुम्हाला नक्की आमच्या कॉलेजवर बोलू, तेव्हा तुम्ही नक्की यावं ही तुमच्याकडून अपेक्षा. थँक्यू सो मच मॅडम. ओव्हर टू यू हुझैफ. Yes, sir. Yes. येस मॅम. ऍक्च्युली मी कोणाचं तरी समज येईल मैम आपका आवाज ऑडियो थोड़ा अटक रहा है मैम. कहा कि मुझे कोई आई सॉ समवन रेजिंग द हैंड तो मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके राहुल. Yes, ma'am. Yes. Okay, we'll Yes. take this last question. Okay. Yes, Rahul, please go ahead. मैम आप इंस्टाग्राम पर हो क्या? इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर अभी अभी शुरू किया. मैं आपके साथ Yes, उनके ma'am. सारे अकाउंट का Ma'am. डिटेल शेयर कर दूंगा. क्योंकि Yes, मैं ma'am. और म्यूजिक में अच्छी तरह से म्यूजिक फॉलो करना चाहते हूँ कि जो अंदर से आपको जो फील होता है म्यूजिक के लिए कि मैंने 2 महीने किया ट्राई किया या मैंने 6 महीने ट्राई किया 1 साल ट्राई किया मुझे चाहिए उतना सक्सेस नहीं मिला ऐसे मत करो और छोड़ मत दो जो भी है ना मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरा खुद का एक्सपीरियंस कि मैं गाने बहुत गाती थी मैं सीखती थी बट मुझे ऐसे लगता है कि मेरा खुद का मतलब ऐसे लगता था मुझे लास्ट ईयर तक कि मेरा खुद का कुछ क्रिएशन होना चाहिए मैं गा रही हूँ बट ये किसी ने मुझे बोला नहीं था बट मुझे लगता था कि आई विल बी अ कंप्लीट म्यूजिशियन ओनली व्हेन आई कैन क्रिएट समथिंग ऑफ माय ओन आई कैन क्रिएट म्यूजिक ऑफ माय ओन तो जरूरी नहीं कि मैं गाने ही क्रिएट करूँ या कुछ भी बट अगर मैं कोई कवर सॉन्ग भी बना रही हूँ तो उसमें अगर मैं 2 लाइन अपने हिसाब से थोड़ा मोल्ड करके कुछ वेरिएशन अपने खुद के डाल सकूं तो मुझे ये चाहिए था कि मेरा खुद अपना टच हो गाने को जो कुछ कुछ हरकतें मैं अलग गा लेती थी बट मुझे आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट तो मुझे खुद का एक म्यूजिक क्रिएट करना बहुत मन था बट मैं कोशिश भी करती थी बट वो मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता था कि नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा है जो मैं क्रिएट करती थी बट अभी पता नहीं शायद जो मैं सोच रही हूँ कुछ पिछले कुछ सालों से जो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ क्रिएट करूँ म्यूजिकली जो अच्छा लगे सुनने में भी तो वो बाय गॉड ग्रेस अभी नए साल में 2021 में मैंने खुद के 3 गाने लिखे भी मैंने हैं कंपोज भी मैंने किया है वो अभी महाशिवरात्रि को एक गाना मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा खुद का लिखा हुआ रोज और मतलब वो मंत्र जो कहते हैं शिव मंत्र शिव स्तुति उसके जैसे है थोड़ा गाना एंड थोड़े प्रोज है बट वो महाशिवरात्रि को एक गाना उसके बाद एक खुद मैंने मेलेडी जो सोलफुल सॉन्ग है वो मैंने लिख के कंपोज किया उसका ऑडियो रेडी है शूट करके वो भी एक ऑलमोस्ट 15-20 दिन में मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपको चाहिए होता है वो अगर आप इफ यू होल्ड ऑन टू इट
ऐसे नहीं कि छोड़ दो कि हाँ मैंने कुछ दिन ट्राई किया नहीं हुआ छोड़ दो। मैंने पिछले 2-3 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ मैं ओरिजिनल म्यूजिक अपना बना सकूँ। तो वो बनाती थी बट वो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था। अब कुछ बनाया जो मुझे लगा कि ठीक-ठाक है। ये लोगों के सामने मैं ला सकती हूँ, मैं दूसरों को सुना सकती हूँ। तो वो चीज़ें फाइनली मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा मैं कंट्रीब्यूशन म्यूजिक को दे रही हूँ या कुछ अच्छा म्यूजिकली मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ करना है और बहुत इच्छा है मन से वो करने की, तो डटे रहो, छोड़ मत दो उस चीज़ को, वो ज़रूर होगा। मेबी उसको 6 लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं बट छोड़ना नहीं है उसको बीच में। मैम Yes, मैं भी हेलो हेलो yes, Rahul, go ahead. मैम मैं भी अभी यूट्यूब पे मेरा भी चैनल है, तो उसके ऊपर मैं और मेरी बहन हम दोनों म्यूज़िक वीडियोस के ऊपर ही हम शूट करते हैं। मतलब ऐसे उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाती है मोस्टली, हमारे पास खुद का भी ऐसे म्यूज़िक नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैम, एक गाना आप मेरे को दो आपका बना के, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना के पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। इस तरह से हम बात करेंगे, हम क्या करें। सर से बात करके आप कॉन्टैक्ट करो मुझे, सर के पास मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। प्रतीक और मुझसे आके मिलो एक बार, हम बोल के बात करके बात करेंगे मैडम से, ठीक है? ओके ओके मैम, ओके सर। बात करके आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लो, कॉन्टैक्ट करो, हम लोग बात करेंगे अगर इसके। Yes, thank you so much, Pratik. यस मैम, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज आप आए, इतना टाइम दिया। वी आर वे ओवर द टाइम अलॉटेड कि आपसे हमने जो लिया था मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। बट जस्ट मैम, जिसका मोमेंट लाइक सारे लोग वेट कर रहे थे, अगर आप प्लीज़ मैम, एक दो कंपटीशन हमने हेल्ड किए थे, उनके रिजल्ट्स अगर आप प्लीज़ अनाउंस कर दें, एंड इफ़ यू कॉन्ग्रेचुलेट द विनर्स। सो फर्स्टली मैम, जो पहला गिव अवे कॉन्टेस्ट था, इफ आप उसका रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दें तो प्लीज। Joseph, just share the slide or the image. यस मैम। गिव अवे कॉन्टेस्ट विनर शुड Yes. giveaway contest are, third winner is, I will start from third rank. Third winner is Kethi Thakkar. Ketki Kothalkar. Yes. From DES Civil. Second winner is Sakshi I from PE Computer. And first winner is Piyusha Shinde from DSP Civil. Congratulations to all the three winners. Happy Women's Day. उसके बाद Women's Day स्पेशल ऑनलाइन सिंगिंग कॉन्टेस्ट इसके दिन। थर्ड विनर और रैंक होल्डर भाग्यश्री। मैम, आई वुड जस्ट लाइक टू, सॉरी इंटरप्ट यू देयर, जो हमारे सिंगिंग विनर्स हैं, इफ़ यू कुड प्लीज़ एज एंड व्हेन यू आर अनाउंस्ड, इफ़ यू कुड कम अप एंड एक दो लाइन अगर आप गा लें तो बहुत बेहतर होगा। लाइक अभी जो थर्ड हमारे विनर हैं भाग्यश्री पाटिल, प्लीज़ इफ़ यू कुड कम अप एंड यू नो सिंग अ फ्यू लाइन्स फॉर मैम एंड शो हर योर स्किल। भाग्यश्री? There. Oh, just 1 minute. Yeah, sure, no problem, Bhagyashree. हीच मुझी प्रार्थना, हीच मुझी मागणी,
हीच मुझी प्रार्थना हीच मुझी मागणी माणसाने माणसाशी मानसा समवागणी हीच मुझी प्रार्थना हीच मुझी मागणी माणसाने माणसाशी मानसा समवागणी हीच मुझी प्रार्थना. Yes, Sujit. Sujit, Yes, sir. second number. Yeah, Bhagyashree. Yes, thank you very much. Yes, thank you so much, Bhagyashree. Congratulations. Thank you. Yes, ma'am. Second rank holder is Gargi. Second year student. Congratulations, Gargi. Yes, Gargi, are you there? Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. So pleased to hear from you. Do I have to sing? Yes, Gargi, if you would like, Yes, 2 lines. 2 lines, if possible. Okay. Right now, I don't have any karaoke or anything. I will sing the lyrics only. No, it's not needed. You just sing a song. Okay. Thanks, ma'am. नैना नू पता है नैना दिखता है सानू किस गल दी फिर मिलदी सजा है नींद उड़ जावे चैन चढ़ जावे इश्क दी फकीरी ज्यादा लग जावे नींद उड़ जावे चैन चढ़ जावे इश्क दी फकीरी ज्यादा लग जावे ए मन करदा ठग ठोरिया ए मन करदा सीना जोरिया इन सिख लिया दिल दिया चोरिया ए मन दिया ने कमजोरिया ए मन करदा ठग ठोरिया ए मन करदा सीना जोरिया इन सिख लिया दिल दिया चोरिया ए मन दिया ने कमजोरिया. Thank you so much, ma'am. Okay, good. Good. Congratulations again. Thank you, ma'am. Okay. First rank holder, special online singing contest is Manali Chaturvedi, third year computer. Sorry, Manali Chaudhary. Yes. Congratulations, Manali. Are you there? Manali Chaudhary. Okay, I think she's having some network issue because she was present. Okay, anyways, ma'am, thank you so much once again, ma'am. And as a formal vote of thanks, I kindly request Pratima, ma'am, if she could please come forward and grace us with a vote of thanks. Yes, thank you, Joseph. So, first of all, my heartiest greetings and best wishes to all women on this International Women's Day. So, this International Women's Day is a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of all the women, right? So, before expressing vote of thanks, I request everyone to kindly unmute yourself and take a pledge along with me on this occasion of this International Women's Day. So I will just share the screen. I request everyone to take a pledge along with me. Huzuf, is it visible? Yes, ma'am, it's loading. Okay. Yes, ma'am. It is readable, right? Yes, ma'am. Okay. Is everyone unmuted? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So I will just read it out. Then you all can continue with it. I pledge to uphold the dignity of women and girls at all times.
I pledge I pledge to uphold the dignity of women and girls at all times. at To all uphold the times. dignity of women and girls at all times. I pledge to stand up for women's empowerment and gender equality. I pledge I to stand I up pledge pledge for to women's stand up empowerment for and for gender women women equality. empowerment and gender equality. gender equality. I pledge to stand up for all, ending all forms of violence and discrimination against women and girls. I pledge to stand up I I for pledge to pledge stand up ending for ending of all forms violence of and ending all violence discrimination against women against and women girls. and girls. I girls. pledge to celebrate the girl child and not to differentiate between a girl and a boy. I pledge I to I pledge pledge to celebrate the girl child celebrate and the not to girl celebrate child the and differentiate girl not to child between a and boy not differentiate to and a between a girl. boy differentiate and between girl. a boy and a girl. I pledge to support the education of women and girls. I pledge to I support I the pledge pledge to to education of support support the the women and education of education girls. of women and women and girls. girls. I pledge to respect all the equal rights of women and girls. I I pledge to pledge I respect to pledge for the respect to equal for respect the rights of equal women rights and the of girls. equal women rights and of girls. women and girls. Okay. So thank you everyone. On behalf of Department of Computer Engineering of Bharati Vidyapeeth College of Engineering, Lovely, I, Professor Pratima Kadam, express my vote of thanks to our graceful guest, Ms. Deepika Pate, Madam. Thank you, Madam, for sharing your experience over the music. It was really an amazing session. Thank you. Next, I want to thank all our beloved Principal Dr. Patil sir for his support. Next, I would like to express a huge big thanks to our HOD Professor Uday Patkar sir, who is a constant motivator and our guide, who goes almost is out of way to motivate us always. So I would like to thanks all teaching and non-teaching staff for joining this session. Lastly, thank you to all my dear students. Thank you one and all. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you so much. Any parting words from you, ma'am, if possible? My life as a girl. Sorry, ma'am, you're not audible, ma'am. If you could please repeat that again. Stay positive, enjoy life as it comes, follow your passion, and don't give up. Sure. Thank you. Thank you so much, ma'am. मैम We'll हेलो definitely. हेलो Thank you, ma'am. मैम सेशन की शुरुआत भी गाने से हुई थी सेशन की एंडिंग भी प्लीज गाने से ही कर दो मैंने एक्चुअली अभी यूट्यूब चैनल पे कवर सॉन्ग बनाए हैं और मराठी फिल्म से है। तो सेशन की शुरुआत मराठी गाने से हुई थी, अब एंड भी मराठी गाने से ही करती हूँ फिर। अ, हमेशा हम लोग जो पंढरपुर हमारा महाराष्ट्रियन लोगों का जो भगवान है विठोबा, तो हमेशा हम लोग विठ्ठल विठ्ठल उसकी पूजा की पूजा कोई नहीं। उस पर ये गाना है विमेंस डे के लिए कुमारी, जो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। पोस्टल गर्ल मूवी से है, वो गाना मैं आपको Sorry, I played the recorded.
तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालना तुझा विठुरायाला हो संसार वेदना तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालना ईश्वरा विठुरायाला हो संसार वेदना ये गा रखुमाई ये भक्तांच्या माहेरी सावलीच्या पावला विठूच्या गाभारी ये गा रखुमाई ये भक्तांच्या माहेरी सावलीच्या पावला विठूच्या गाभारी तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालना एकरा विठुरायाला हो संसार वेदना सकलाची आई साता जन्मांची पुण्याई हे पदरात आम्हावर छाया धरवाई तुझी थोरवी महान तिन्ही लोकी तुला मान देवरदार हो तुझ्या आरतीचे भुई रखुमाई 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 Thank you. That was really amazing, ma'am. Thank you so much. So towards the conclusion, ma'am, I would again like to thank you for coming in, and all our dignitaries present here. Thank you so much for coming in. And I now declare as the meeting concluded. And ma'am, this is just the first session that you were here with us, but I'm sure कि ये एक शुरुआत है, and आगे हम बहुत मैम आपसे मिलेंगे, and आपको कॉलेज में भी इनवाइट किया जाएगा मैम. And thank you so much, ma'am, for gracing us. Ma'am, your audio, ma'am. Sorry. I also enjoyed a lot. In fact, earlier I was not sure कि ये session कैसे होने वाला है. I was a little doubtful, but अभी मुझे बहुत मजा आया. Actually मुझे बहुत मजा आया, और जो questions आप लोगों ने पूछे वो भी मतलब एक typical interview type के questions नहीं. Basically इंटरव्यू आपने गाना शुरू कैसे किया, आपका गाना यहाँ तक कैसे आया, वो मतलब एक टिपिकल क्वेश्चन. बट आपको ने गाने से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निकल चीजें पूछी, जो प्रैक्टिकल म्यूजिक फॉलो करना, मतलब म्यूजिक में करियर बनाने के लिए जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आते हैं, वो भी क्लासिकल म्यूजिक सिलेक्ट करने में क्या क्या डिफिकल्टीज, वो मतलब क्वेश्चन जो थे वो भी एक क्वालिटी क्वेश्चन थे, सिर्फ किसी के लिए पूछा नहीं थे. उसके बाद मुझे मतलब मुझे भी मजा आया वो क्वेश्चन आंसर करने में, मुझे भी एक्चुअली चैलेंजिंग लगा. So had a good. Thank you so much, ma'am. Thank you for coming in. Thank you. Yes, everyone. So on behalf of BEP Computer Department, I now declare the meeting as concluded. You all may kindly leave the session now. Thank you so much. Thank you, one and all.